welcome back to our channel. First, tell me, how was your New Year like, and what are your New Year resolutions? जैसे पिछली बार मेरा रेजोल्यूशन था कि मुझे 10 kgs वेट रिड्यूस करना है, तो 5 बढ़ गया. And- वॉच द फुल वीडियो बिकॉज लास्ट में एक खास बात है. आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी. अभी तो जैसे 3-4 दिन हो गए हैं कल New Year डिनर के. में क्या खाया है? तुम्हें याद होगा कि 100k views on YouTube was like a big thing. What was your favorite trip after गुरुवार? सिंगापुर. मुझे लगता है हम जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, प्यार के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ. विच ड्रामा क्लास. तो बच्चा फिर ग्रेजुएशन के लिए कहीं ना कहीं जा ही रहा है, फिर पोस्ट ग्रेड, जॉब, वर्क जो भी करता है, देन शादी. ना आजकल लड़के साथ रहते हैं ना लड़कियां साथ रहती हैं. वी आर द ऑर्कुड जनरेशन. Yeah. एटलीस्ट आई एम. टेस्टिमोनियल्स वर लाइक योर फैंसी कार, आपके पास कितने हैं. फिर देन देयर आर फेजेस जब मुझे लगता है यार एक अच्छी गाड़ी आदमी को ले लेनी चाहिए, तो मेरी फीड पे सिर्फ कार्स भर जाएंगे. लोग ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि इट्स अ वेरी सरप्राइज प्रपोजल, पर इट इज नॉट. सो आई थिंक अब जनता भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई एंड दे नो व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज रियल. आई हैव नेवर बीन इनटू ब्रांड बहुत You दिखाना, have never been. हाँ. जिस पे कोई बहुत बड़ा लोगो एकदम दिखता होगा. That is not classy also. Oh shit. We made it to the second video, guys. Yes. So welcome back to our channel. Happy New Year. On that note, Yes. On that note, Happy New Year first. सबसे yes, important बात. Yes. Happy New Year to everyone. And on that note is the name that we selected. बहुत Yeah. amazing suggestions थे. And we might use a few of them later on. Yeah. So what we've decided is this is like a season. We'll have 5 episodes. And this is the second episode. We made it to the second episode. So there will be 5 episodes. So for this season, we are using the name On That Note because we so loved it. Yes. So thank you to everybody who watched it, loved it, dropped comments, DMs, even called. यार बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था. पहले वीडियो की अपार सफलता के बाद Here हम we आ are. गए हैं. What are we talking about today? First, tell me, how was your New Year like, and what are your New Year resolutions? Everybody wants to know. New Year resolution. I am not a resolution guy. No. You should have known it by now. कुछ तो. Live through. Live But through that's a another nice. year. But that's a nice resolution to Yeah. have. Actually, मेरा वैसे every year I have resolutions, but this time I have no resolution. It's just that I want to give my 100% to जैसे YouTube. पिछली बार मेरा रेजोल्यूशन था कि मुझे 10 kgs वेट रिड्यूस करना है, तो 5 बढ़ गया. तो अभी मैं सोच रहा हूँ रेजोल्यूशन थोड़े से उनको स्टेप बैक करके जैसा चल रहा है इससे और ना बढ़ ये जाए. वाले resolutions I think मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ. पतला होना and healthy खाना, no junk Hmm. and sleep on time. These don't work. Hmm. 1 हफ्ता 2 हफ्ता. I think अब ये लाइफस्टाइल में थोड़ा हम डे बाय डे आवर लाइफस्टाइल इज गेटिंग बेटर, तो वो धीरे धीरे आ रहा है उसमें. दैट इज फाइन, Hmm. बट आई डोंट हाँ, थिंक मुझे भी लगता है ये छोटे छोटे हाँ. ऐसे पतला होना, ये सब नहीं, ऐसे होना चाहिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन की कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर लेना. सीरियसली. So the resolution is YouTube करना है, like we have to give our 200% on it and not obsess over numbers. Yeah, that's the resolution. करने पे फोकस है, Exactly. रिजल्ट पे फोकस नहीं नहीं है. है. Not at all. Exactly what my tattoo says. Have you shown your tattoos? I think it's there on Instagram, but yeah. हाँ. So I have a tattoo on my arm which has a Gita shlok on it. Hmm. So which means कि the only right you have is over your actions. तो तुम सिर्फ एक्शंस पे तुम्हारा राइट है, रिजल्ट पे राइट नहीं है. सो यही मेरा टैटू कहता है और टाइम आ गया है उसको फॉलो करने का. How many hours did it take इसको कराने में? दिस डिड नॉट टेक लॉन्ग, लाइक 2.5-3 hours. Mohit has a picture also here, मेरी picture, and I think Summers का हम wait करेंगे to show that. Yeah. Or you can, hop on to our Instagram profiles and check it out. Right. Yeah. Yes. So it's in the description box. Description से याद आया, लास्ट टाइम हम YouTube का सबसे बेसिक चीज़ ही भूल गए थे. आपको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक करने का ऑर्डर देना है. प्लीज. हाँ. But still some people did it, which was very sweet. But this time we are here to remind you, do like, subscribe, share, do all good stuff. कमेंट. Yeah. And वॉच द फुल वीडियो बिकॉज लास्ट में एक खास बात है. yeah. Asha, I want to ask you something. एक ice breaking हम rapid fire करते हैं, then we'll begin with this podcast. So, is there any habit you're leaving behind this year? No. Carrying on all the bad ones. You have to answer. Any random. I'm trying to eat healthy.
You're gonna do that? मतलब अभी तो जैसे 3-4 दिन हो गए हैं कल न्यू डिनर ईयर में के। क्या खाया है? कल डिनर में मैंने एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच पिज्जा खाया है। And you're saying this today? Cheese has Guts. protein, chicken has protein. Cheese has only protein. I am going to focus on the good Oh, this मैदे year. का क्या? I am going to focus on the good. अच्छा. मैदा गेहूं से बनता है, गेहूं किसान उगा रहा है, हम्म. किसानों की चिंता नहीं है तुम्हें इस देश में। Right, true. Yeah. What is that you want more of in 2026? Money. Seriously? You're so bad. You made me do it again. Acha, what is it that you want less of in 2026? Less of in 2026 expenses. ठीक है. Quite an interesting पेट्रोल का answer. प्राइस। And what is it from your end? What is it that you want more of this year? More of in 2026? More of people to watch YouTube, our YouTube channel. Good answer. No, actually, I have an answer. What I want more of in 2026 is I want more of. मैंने actually decide किया है that I am an overthinker. मैं बहुत extreme negative में सोच So you want सकती to हूँ. think even more? No, I want to think extreme positive this time. I want to overthink, but the positive part. Okay. I want to think the जैसे हम worst सोचते हैं, I want to think the best. So that is what I'm going to do more of in 2026. I want to read more. I think मैंने इस साल कम read किया comparatively बाकी सालों से। Books तो खरीदी but उनको read नहीं किया, वो सजा दी गई और अब I think समय आ गया है कि उनको समय देने का। That's what I want to do more of. What is it that we're going to talk about today? The main topic. Okay, so the main topic is so we sit here today not as experts, but I think as people who became parents and changed somewhere along the way. So we are going to discuss how our lives changed post having a tiny boss in the house. Also that we are of that generation जिसने before and after social media देखा है as a couple also. Yeah. So when we got married in 2014 और उस समय social media obviously it was there but it was not to the extent that it is It today. existed, but it wasn't running our lives. जो आज का scene है. People were not scrolling all day in India. So but अभी वो बिल्कुल change हो चुका है. 2014 to 2018, I think this was the No, period. till Jio. I think till Jio came in 2016 or 17. I think. 17 तो जब तक गुरबानी we had, I clearly remember. इतना social media wasn't at its peak. Yeah, I think though that free internet caused the frenzy. True. तुम्हें याद होगा कि 100K views on YouTube was like a big thing. कि somebody got 100K views. Somebody has 1 million subscribers. Oh Because my I god. was never a YouTube person. I think you were. I was also always a YouTube person. तो मुझे याद है कि 1 million subscribers on YouTube was equal to 50 million today. तो किसी के 1 million होते ही नहीं थे. Like 300-400K वाले तो सेलिब्रिटी हो चुके होते थे. अब तो 300-400K आप अगर YouTube वॉच कर रहे हो तो every other channel is 100K except ours. अरे यार होंगे. Please get us to 100K. Fingers crossed. That's the goal. हाँ. Yeah. 100K in 2026. देखो. So I think these are the two major topics we are going to discuss today. Yeah. And I'm sure बहुत लोग relate कर सकते हैं because everybody is in the same boat. At least our generation. I think I also want to talk about one thing today: the lives of children in smaller towns versus big towns. Yeah, We can touch that topic and we can expand on it maybe in the next video. we can. Firstly, how we as husband and wife changed after Gurbani. Yeah. I think काफी to if anybody says कि after baby your lives don't change and it's just that it's lesser sleep and more opinions, ऐसा नहीं होता. It changed 360 degree. I think I mean this is not the guy who I married. So he has changed completely and I have changed completely. So I think romance, if I say, has gotten थोड़ा quieter. And maybe care is the louder part. थोड़ा care loud हो गई है and that is the new romance I think. On any given day I want him to fold clothes for me than get a flower for me. So I think I'll put it this way. And I do both. Yeah, true. So I am blessed in that ways. But so romance is quiet now and it has, I think love has taken different shapes and it has different meanings. It has taken a different shape. Yeah.
she's right. literally, but I think it has a different meaning now. So it's like showing up together than grand gestures. So pehle I think it was like anniversaries hain, hum travel kar rahe hain, that which was a huge part. Like first 3 years when we didn't have Gurbani, I think we traveled a lot. Yeah. We had some great travel plans and successfully हमने वो किए भी. And I think first 3 years travel or any date nights, vacations, everything was spontaneous. ट्रैवल तो हमने गुरबानी के साथ भी ठीक ठाक किया है, ऐसा नहीं ठीक ठाक, but we can't make it like ऐसे पहले के जैसे spontaneous. स्पॉन्टेनियस प्लान्स तो हाँ. ऑब्वियसली विद अ किड आपको पैकिंग ज्यादा करनी है, और स्पेशली व्हेन द किड इज लाइक अंडर 1 or 2 years old, तो फिर मतलब बहुत सारा उसका खाने का भी आपको एक्स्ट्रा केयर करना है. ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत एक्सट्रीम Child वेदर ना friendly. हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो. या what was your, since we're talking about it, what was your favorite trip after Gurbani? Singapore. Singapore. Yeah, it was totally. amazing. Singapore, you're doing well. Somehow I think Gurbani cooperated. She enjoyed. So She I enjoyed. think And it is such a kid-friendly place. kid friendly. True. भाई साहब, कहीं वो छोटा सा है. स्ट्रॉलर को, Singapore is कहीं भी स्ट्रॉलर को आपको उठाना नहीं है. No. There's stroller parking at restaurants, outside Yeah, restaurants. yeah. Even at those theme parks, there's a भाई proper गजब stroller लोग हैं parking. यार. उन्होंने मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक परफेक्शन ले आया है सिंगापुर. एंड आई हैव बीन टू दुबई, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, तो जापान तुम गई हो. आई डोंट थिंक एनी प्लेस कम्स नियर टू सिंगापुर. मे बी जापान के लिए भी मैंने बहुत ऐसा ही सुना है, बट सिंस सिंगापुर हम दोनों गए हैं तो, और मैंने यूएस जिसको कहते हैं वर्ल्ड की सबसे वैसी बेस्ट कंट्री, बट nothing comes close to Singapore. And the greenery in Singapore. आंखों में इतना हरा refreshing रंग है. गड़ जाएगा, इतनी ग्रीनरी है. That green I haven't seen anywhere. Yeah. And the entire city. एंड वो लिखता है डेवलपमेंट विद, आपका कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे पेड़ काट के सिर्फ बिल्डिंग ही बना दी है. कितनी ग्रीनरी और क्या हवा साफ सब कुछ है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बात करते हैं, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिंगापुर का द बेस्ट पार्ट यू रिमेम्बर, यू फॉरगॉट योर फोन एट द होटल लॉबी. I swear. सो वो हमारी फ्लाइट थी, हम होटल से निकले एंड हम एयरपोर्ट पहुंच 3 गए. a.m. हाँ, एक्चुअली 2 or 3 a.m. रात के I 2-3 was बजे. sleepy. एयरपोर्ट पहुंच के करिश्मा रिमेम्बर्ड कि शी फॉरगॉट हर फोन इन द होटल लॉबी, एंड वहां से हमने एयरपोर्ट से कॉल किया होटल, एंड दे वर लाइक, They were so chill. It's Yeah. okay. yes, we can see your phone. There's no U-turn in Singapore. Yeah. So there's Driver no told U-turn us. also. और उसके बाद उन्होंने कहा okay, we'll send your phone. And I'm like, as Indians हम तो कंफर्म थे ये फोन गया. आने ही नहीं वाला है. हाँ, but उन्होंने immediate phone भेज दिया, and they didn't charge us for Through it. a taxi. Imagine a taxi Yes, they getting my sent phone. it with a taxi. Not hotel's taxi. They booked a normal regular cab and he literally handed over the phone Yes, to me. मुझे it तो was- अब तब भी नहीं It was विश्वास हो रहा such था. a surprise. क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट इंडिया में इट्स अ रेयर इवेंट. You'll be surprised You if will be this happens. surprised if it happens in India, and उनके लिए it was such a chill thing कि Such a chill it's given कि वो चोरी नहीं होगा, और इंडिया में it's given कि वो चोरी ही होगा, और अगर नहीं होता तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि अरे वाह बच गया. So yeah. But हमने बहुत amazing trips किए हैं, but yeah, Singapore with Gurbani was really amazing. Gurbani was 2. Yeah. And she had such a great time with theme parks में, Universal Studios. And they have such nice sidewalks. Singapore is very good. Singapore can be done again. Singapore anytime. tourism, please sponsor us. So I am crazy about going to such places. और मुझे तो बहुत होता है कि यार हम अगर नहीं, जैसे मैं यूएस भी गया था तो मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पेशली गया था सिर्फ वो यूनिवर्सिटी देखने, टू द कैंटीन, एंड आई हैड सम फूड ओवर देयर. सो जस्ट टू सिट देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड ब्रीथ इन द सेम एयर एज दोज इंसेनली ग्रेट पीपल जो वहाँ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं. एंड बट वी हैव बोथ डन अ सोलो ट्रिप आफ्टर गुरबानी आल्सो, Yeah. इंडिपेंडेंटली. I तो went when Gurbani was 9 months. So Yeah. जब मैं किसी को बताती हूँ तो they are so surprised. Gurbani was just 9 months, and let me tell you, this is the perfect time.
बिकॉज व्हेन द चाइल्ड टर्न्स 1 उसके बाद वो पहचानना शुरू कर देता है एंड दैट्स व्हेन द दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस कम. पहले भी चैलेंजिंग है बट आई थिंक वो उसके पहले अगर आपको ऐसा कुछ करना है यू कैन टोटली डू दैट. आई वाज आउट फॉर 9 days. आई वाज आउट फॉर 9 days विदाउट गुरबानी, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना डिफिकल्ट होगा बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट एवरी सिंगल डे. मेरा आधा दिमाग यही था. आई एक्सेप्ट दैट. सो इट्स टफ. Yeah. जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं हैट्स ऑफ टू देम बट इट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल आफ्टर गुरबानी एंड दैट टू सोलो. तो दैट वाज एन एडवेंचर फॉर मी. तो वो जो मैंने कर लिया ना, it was definitely an amazing trip. We went there to see the best preschool in the world. Like Japan has one of the best preschools. So that was an amazing trip that way. But then once you are a mother, ये थोड़ा सा मुझे लगता है हिल जाता है. हिल जाता है. And आपका 50% is here. So with that अब आप जितना कर सकते हो तो we did that. But yeah, I traveled with Gurbani being 9 months and that was quite an adventure. How was your solo trip? My solo trip was great. I think I've said enough about it. More went to US. Yeah. I think वो जो है ना कि वो लैंड ऑफ ड्रीम्स जो कहते हैं कि द अमेरिकन ड्रीम, और वो तो स्पेशली क्योंकि मैं फर्स्ट डे मेरा न्यूयॉर्क में ही था. The most happening place. हाँ, तो मतलब द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो न्यूयॉर्क को. इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड की वहाँ शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके लोग न्यूयॉर्क में ना रहते हों. एंड आई डिड काउच सर्फिंग ओवर देयर. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो काउच सर्फिंग. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बिल्कुल विदाउट पेइंग एनीथिंग एंड विदाउट कुछ भी आप किसी के घर पे रह सकते हो. दे कैन ऑफर यू the place to stay, not like Airbnb, like बिल्कुल ही एक friendly way में कि you should not, you don't have to, but you should spend time with your host and maybe you can cook them breakfast or something sometime. And it's a amazing app, Couchsurfing. So अपने safety और सबको देखते हुए I think but only when you do it from the app या website से. But you can't just go and select anybody and no they have to accept you. You have to put कि हाँ भाई हम यहाँ आने वाले हैं X शहर में and they can decide whether or not they want to accept you. Then it's safe also I think. Otherwise it's very उसमें verification भी होती है कि credit card से payment है. So I think to an extent रिस्क तो किसी भी चीज में, होटल रहने में भी एक टू एन एक्सटेंट रिस्क है. ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ज्यादा है बट ऑल्सो द अपसाइड इज ह्यूज. सो आप लोकलाइट के साथ रह सकते हो. इट्स वेरी गुड. मतलब विथ यू आई थिंक मुझे ये पार्ट ऑफ द ट्रैवल अच्छा लगता है. लाइक ही वांट्स टू एक्सप्लोर द जैसे जो कंट्री साइड होता है, व्हाट आर द लोकल्स ईटिंग, और थोड़ा बहुत जो हम एक जो हमें आइटिनरी मिलता है उससे हट के जो चीजें होती हैं कर सकते हैं. तो यू यूजुअली डू दैट, यू लुक फॉर थिंग्स लाइक दिस. सो इट इज अ गुड थिंग कि वो टूरिस्टी चीजें भी मुझे करनी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करनी होती, बट उसके बाद आई वांट टू सी समथिंग जो टूरिस्ट कभी नहीं देख पाएंगे. बट अब वी हैव डन इनफ टूरिस्टी थी. जैसे अब लंदन गए तो वी डिडंट वांट टू डू लंदन आई एंड वो सारा स्टफ, बट बिकॉज़ वी डिड, बिकॉज़ गुरबानी वाज देयर. फॉर हर इट्स ऑल न्यू. सो अब हमें बहुत सी चीजें उसको रखते ध्यान हुए में रख के करनी पड़ती है. एंड वी डिड लंदन आई फॉर हर एंड शी रियली हैड अ ग्रेट टाइम लंदन आई पे. आई डोंट नो, मुझे वहाँ का वेदर बहुत डिप्रेसिंग लगता है. तो इफ पीपल आर लाइकिंग इट इट्स ग्रेट. मतलब घूमने के लिए इट्स अमेजिंग. वी वेंट इन समर्स एंड स्टिल उनके समर्स में वी वेंट इन अगस्त, जून. वी वेंट इन जून एंड इट वाज सपोज्ड टू बी देयर समर्स. मैंने अपने सारे वो समरी ड्रेसेस पैक किए थे. वहाँ जाके उनके समर्स वर ऑल्सो 2 layer 3 layer. गुरबानी को तो आई वॉज मेकिंग हर वेयर 2 layer बॉटम्स. लाइक इट वॉज दिस कोल्ड. तो यू कांट डू विदाउट जैकेट्स एंड ऑल. तो एंड आई एज अ पर्सन डोंट लाइक विंटर्स. आई हेट ये वाला टेम्परेचर. आई डोंट वांट टू लेयर. आई हैव अ प्रॉब्लम विथ लेयरिंग. एंड वहाँ पे यू हैव टू डू दीज कोट्स एंड जैकेट्स. मुझे सफोकेशन होता है. सो टेम्परेचर के उससे आई रियली गुरबानी एंजॉयड लंदन अ लॉट बिकॉज वहाँ के वो जो चिल्ड्रन पार्क्स एंड प्ले एरियाज जो रैंडम उनके पार्क्स में बने होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतनी हाई क्वालिटी के झूले लगे होते हैं. एक एक चेन और वुडन पार्ट इज लाइक सॉलिड. वो देख के लगता है कि ये 100 साल नहीं टूटेगा. इवन लंदन इज किड फ्रेंडली.
Yeah, London is very kid friendly Hmm. if the kid is with their parents. इतनी सी उम्र में काफी हाँ, उसने मैंने अपनी पहली फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट 20 साल की एज में ली थी। after I got married. No, not domestic, international flight. मैंने डोमेस्टिक पहली ली थी जब मैं 20 साल का हो चुका था। So, हमें एकदम से कहीं जाने का मन कर गया है। so tell me, how has fatherhood changed you? फादर ने चेंज तो नहीं किया, मुझे लगता है एक नए इंसान को ही जन्म दे दिया है। Likewise. सो एक तो मुझे आफ्टर हैविंग अ डॉटर मुझे ये लड़के होने का ऑब्सेशन नहीं समझ आता इंडियन सोसाइटी का। But I think being a Obviously girl all mom, children are great or हाँ, because we have a daughter so we have only But one then- side का perspective, but ये जो one side है Hmm. बहुत amazing है यार। touch wood. Yeah. So it's a blessing. Raising a girl child is a blessing, and he's obsessed with it. Yeah. मतलब मुझे लगता है कि अभी तक प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता था। हाँ, पहले मुझे लगता था कि आई लव माई पेरेंट्स, फिर मुझे लगता था कि आई लव माई वाइफ और नॉट, बट आफ्टर हैविंग अ किड यू रियलाइज कि आपको that's real love. अभी तक जो भी था Hmm. वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव तो नहीं था। Hmm. क्योंकि ये बच्चे से जो प्यार होता है ना, जब आपका बच्चा आपकी गोद में आता है तो आपको पता चलता है आपको आज तक प्यार नहीं हुआ था। Hmm. क्योंकि अभी मुझे लगता है हम जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, प्यार के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। बच्चा जब आपकी गोद में आता है तो दैट्स द फर्स्ट टाइम यू थिंक अब मैं किसी की जान ले सकता हूँ इसके लिए। मेरी भी। स्पेशली I know. so yeah. So how did you change as a husband after Gurbani? आफ्टर हस्बैंड पता नहीं, मुझे लगता है कि याद भी नहीं रहता कि हम लग हस्बैंड रहा है भी वो कोई हैं। और लाइफ टाइम था when we were इनिशियल just डेज मुझे याद है us. बिकॉज गुरबानी वाज वन सच किड जो रात में भाई साहब कितनी बार उठती थी वो Hmm. रोते रोते। अभी मैं रिसेंटली कुछ Thrice फ्रेंड से तो पूछता हूँ कि minimum. कई लोगों के बच्चे रात में बिल्कुल नहीं उठते, Hmm. पूरी रात सोते हैं, द लकी वंस, बट हम बहुत जागे हैं। Hmm. एंड एक टाइम के बाद मुझे लगता है थोड़ी सैनिटी लूज होने लगती है Hmm. कि बस यार अब और नहीं उठ सकता। We didn't have help for first 6 months, जो कि मुझे लगता था I was obsessed with doing everything myself. मुझे लग रहा था नहीं, first 6 months तो I won't have जापा या मेड या कुछ, तो first 6 months ही मुझे लगता है सबसे challenging थे, and that was a mistake I did. I should have had a help उस time पे. एंड I should लेट have. मी टेल द व्यूअर्स समथिंग कि इस बात पे एक रिएक्शन आ सकता है कि यू नो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड पूरी इंडिया की औरतें तो बिना हेल्प के ही बच्चे बड़ा करती हैं, हमारी मम्मियों ने किए 4-4 6-6 8-8, टू ईच इज ओन, एंड गॉड ब्लेस आवर मॉम्स एंड देयर मॉम्स, बट वी आर लिविंग इन 2020s. Exactly. And now we are working. Yes. Both of us are working. Yes. I joined So a school lot back of things change. In with 30 that. days. Yeah. जब गुरबानी was like 30 days, I was back to school. Yeah. तो with work and with running the house, मुझे लगता है ठीक है, if I think कि I need a helping hand, तो ठीक Nothing है. wrong with that, They can yeah. have their own opinions. I have this. So I think वो first 6 months were really challenging for us But we as never took a help couple. in our travels. Like when we traveled with Gurbani, we've never taken a Never. maid or anything when we travel. And कभी ऐसी कोई बहुत need भी नहीं लगी ना? नहीं लगी हाँ. because you were there. हाँ. I think otherwise घर पे क्या होता है, Mohit is also coming back from work after a full day of work, तो and I am also exhausted सारे दिन की ड्यूटी से, तो I think that's when ये challenging हो सकता है कि if the partner doesn't help you in ways you require support, and तब आपको realize होता है कि नहीं, when you're traveling you both are there for each other, तो आई थिंक उसमें आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपको हेल्प की नीड है या नहीं। अदरवाइज आई थिंक डेली चोर्स में आपको, स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम मॉम, आई थिंक आई वाज ऑब्सेस्ड दैट आई वांट टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ खुद करना है। बट देन बाय द नाइट मुझे लगता था मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि
वो तुम्हारे पे निकलता था कि लाइक नाउ आई नीड हेल्प, नाउ यू आर Yeah. देयर, बट नाउ ही इज आल्सो एग्जॉस्टेड. What's the difference you think is there between raising a child in a big town, in a metro, versus a small town जैसे हम प्रयागराज में रहते हैं? But now that we've seen and interacted with parents जो बड़े शहरों में हैं, metros में हैं, तो हमें क्या challenges आते हैं और हमें क्या benefits? Tell us about the challenges first. See, raising a child, one challenge that we always keep discussing is कि it lacks opportunities, it lacks the natural exposure that comes metro cities में. So metro cities आपके बच्चे को naturally bold बना देते हैं, मुझे लगता है. They don't need opportunities for that. And यहाँ पे I think we have to be a bridge between the opportunities and your child, because your child is not gonna get it naturally. आपको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी. यू विल हैव टू बी दैट गाइडेंस. तो आपको वो फैक्टर्स Absolutely. ढूंढने पड़ेंगे दैट विल गिव योर चाइल्ड दैट एक्सपोजर. एंड द वर्स्ट पार्ट इज बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन दैट यू नो दैट यू at some age your child is going to outgrow this city. She or she is going to go out because वो चीज़ें lacking हैं यहाँ पे, and there's no discussion about it. So मेरे क्योंकि कुछ cousins दिल्ली में थे या कहीं बाहर थे, तो मैं ये स्पेशली बिकॉज आई वॉज मच ओल्डर देम, तो मैं देखता था कि कभी दिल्ली में कोई कॉन्क्लेव हो रही है, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, यू नो हैबिटेट में कुछ एग्जीबिशंस लग रहे हैं और आर्ट गैलरीज विजिट हो रही हैं, नेशनल म्यूजियम देखे जा रहे हैं, 26 जैन की परेड देखी जा रही है. तो इन सब टाइप की कोई भी चीज़ें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं. एंड तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लैकिंग पार्ट है कि बच्चों को, जैसा कि तुमने कहा कि एक्सपोजर का तो बहुत डिफरेंस है. एंड एक्सपोजर नॉट जस्ट ऑफ दीज थिंग्स, एक्सपोजर ऑफ प्रोफेशनल वर्क. कि लेट्स से बैंगलोर में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है एंड उसका 10th 11th 12th में वो है, सो अपार्ट फ्रॉम द स्कूल दे आर ऑल्सो सीइंग कि यू नो हाउ लार्ज फर्म्स आर ऑपरेटिंग, ऑफिसेज में लोग हैं, बिकॉज उनको इंटर्नशिप्स करने के चांसेस मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं. स्कूल के ग्रुप्स ऐसी जगह जाते हैं. अ लॉट ऑफ पेयर्स के जो पेरेंट्स हैं, वो कोई होगा, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा, कोई किसी टॉप कंपनी में CFO होगा, CEO होगा, CEO होगा. सो ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरैक्शन आपका ज़रूर हो रहा है जिसमें आप एक हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म को सामने से देख पा रहे हो. इन स्मॉलर टाउन्स वो ऑलमोस्ट एब्सेंट है. सो ज़्यादा से ज़्यादा किसी बच्चे का कोई पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में होगा, तो इससे ज़्यादा आपको कोई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म रेयर, ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलेगी, बट 1000 to 1 का रेशियो हो जाएगा. एंड बाहर आई थिंक वो 20 to 1 का है. So there, the probability of your child getting to know a professionally run world is a lot higher in the bigger towns versus smaller towns. But do you think that small towns will just make your kid more grounded, like थोड़ा सा rooted, grounded, which I think मैंने personally reverse देखा है. क्योंकि small town में जब तक रह रहे होते हैं बहुत grounded होते हैं. Once the small town people leave small town, वो यूजुअली ऐसा चाहते हैं कि अपने आप को जितना हो सके कट करके दिखाना स्मॉल टाउन से. क्योंकि मैं भी इलाहाबाद के बाहर मेरी ग्रेजुएशन थी, वहाँ मैं देखता था कोई अगर मथुरा से है, वो बताना ही नहीं चाहता कि मैं मथुरा से हूँ, या कोई मुजफ्फरनगर से है, या बिहार के किसी टाउन से है, झारखंड के किसी टाउन से है. तो एक तो मीडिया और सोशल मीडिया में भी परसेप्शन है ना कि आप लेट्स से अब कोई सीरीज है मिर्जापुर, अब उसमें इतना वायलेंस, गुंडागर्दी, ये वो दिखा रहे हो, तो अगर कोई मिर्जापुर का बंदा कल को बैंगलोर जा रहा है तो पहला उससे अच्छा मिर्जापुर में ऐसा ही होता है क्या? तो जबकि ऐसा नहीं कि बॉम्बे फाइल्स जैसी मूवीज हैं कि मतलब बॉम्बे में कितना क्राइम है या दिल्ली में कितना क्राइम है पूरी दुनिया जानती है, बट फिर भी स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड के लिए ज्यादा बने हुए हैं. आई हैव नेवर हर्ड एनीवन से कि बैंगलोर से या हो तो अरे इतना क्राइम, मतलब इट्स जैसे दिल्ली के क्राइम की या जैसे विमेन सेफ्टी नहीं है दिल्ली में, ऐसा परसेप्शन तो है ही है, हो ना हो दैट्स फॉर अनदर डिस्कशन. परसेप्शन तो है, लेकिन इट इज नेवर सीन एज एन इंसल्ट. बट
बीइंग फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड इज एक टच ऑफ इंसल्ट आती है कॉन्वर्सेशंस में, जो रेसिज्म हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है इंडिया तो खुद ही में इतना रेसिस्ट है कि जैसे मैं भी इलाहाबाद से हूँ, तो अरे भैया, हम लोग को भैया ऐसे यूपी के लोगों को बाहर बोलते हैं। तो ये तो एक टफ पार्ट है ही है। और बट कितने इलाहाबाद के लोग ही हैं जो बाहर जाके क्या कुछ कर रहे हैं, और इलाहाबाद ही नहीं, और हमारे बट दे जैसे वोंट शहरों टॉक के। अबाउट देम ना, आता है तो कॉन्वर्सेशंस में ये पार्ट आता है। हाँ, बिकॉज बच्चे भी, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे या कुछ, बट वो रेशियो का बहुत स्क्यूड रेशियो है। तो ठीक है, एक बच्चा नेचुरली कॉन्फिडेंट है, वो तो कहीं का भी हो सकता है, वो झोपड़े का बच्चा भी हो सकता है। इनफैक्ट झोपड़ों में रहने वाले बच्चे तो मुझे लगता है नॉर्मल घरों के बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट है ही। लेकिन वो रेशियो बहुत स्क्यूड है। जैसे आप फॉरेन कंट्री जाओ, तो यूएस में नॉर्मली अगर आप 100 बच्चों से मिलोगे तो 90 बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन आपसे कर लेंगे। इंडिया में 10 भी नहीं कर पाएंगे, स्पेशली फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स। एक चीज और भी है कि बच्चे को बड़े टाउन्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, तो नए नए तरीके के पैशंस आइडेंटिफाई करने का चांस भी है। इन स्मॉलर टाउन्स इट्स आइदर पढ़ाई में ही वो मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, सीए बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, बट इट्स ऑल एकेडमिक्स बेस्ड। उसके अलावा रेयर, बिकॉज कोई यहाँ बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम्स भी नहीं होते। तो ये सारे आई थिंक बहुत बच्चे की ग्रोथ को एक हर्डल है कि ठीक है, आज से 50 साल पहले सब जगह यही था, बट आज बिकॉज बड़े टाउन्स में इतनी तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं। But I think only, Mohit, when you can afford it. Like I recently had a word with one of my friends जो दुबई में है, and she was like, if somebody is moving to Dubai or is from Dubai and you'll want to give the best to your child, and वहाँ पे एक फुटबॉल क्लास, like one session is 3,000 rupees. गुरबानी का entire month का डांस क्लास फीस 3,000 rupees. So I think with cities or countries like this, Obviously. अगर आप afford नहीं कर सकते हो, then still you land in the same situation. Yeah. तो अगर True. हम यहाँ पे भी afford कर सकते हैं, तो ये struggle तो है. I want drama, good drama classes for गुरबानी, but मुझे आज तक नहीं मिली. She's really into it, but मुझे नहीं मिलती drama class in our town. So ऐसे struggles तो definitely हमारे हैं, which I think big towns never face them. Which class did you join? Which drama class did you? So I think this is something I've been struck. कुछ ऐसे sources हैं जो आप कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलने वाले in cities like these. No, on a serious note, I think पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वैसे भी आज का जो टाइम है सोसाइटी का, you have time with your child only till 18 years. उसके बाद तुमने आप ज़्यादा कह दिया बच्चे की विदाई ही कर देते हो। बच्चा फिर ग्रेजुएशन के लिए कहीं ना कहीं जा ही रहा है, फिर पोस्ट ग्रेड, जॉब, वर्क जो भी करता है, देन शादी। तो ना आजकल लड़के साथ रहते हैं ना लड़कियां साथ रहती हैं। सो आपके पास बच्चे के साथ मैक्सिमम 18 इयर्स है, लाइक क्लास 12. Okay, so marriage before and after social media. Yeah. So before social media, we got married in 2014. 14, yeah. हाँ, so we have seen life before social media. जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना, हमने तो वो टाइम देखा है। I think हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि हमने तो वो टाइम देखा है। लाइफ बिफोर सोशल मीडिया। ऐसा नहीं, हमने तो सोशल मीडिया एक्सेस ऑर्कुट कब से किया था। वी आर द ऑर्कुट जनरेशन। एट लीस्ट आई एम। सेम सो आर यू। ऑर्कुट, देन फेसबुक। हमने ऑर्कुट का प्राइम देखा है बिल्कुल। और फेसबुक मुझे याद है, इट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एंड कॉलेज के जो सबसे हैप बच्चे होते थे ना, वही सिर्फ फेसबुक पे आए थे 2007 में। 7 और अर्ली 8, आई डोंट रिमेम्बर। या बिकॉज़ 12th आई रिमेम्बर, 8 2000। पर हमारे कॉलेज में वो 7 में आ गया था थोड़ा थोड़ा, एंड मेरे को समझ ही नहीं आता था ऑर्कुट कितना इजी है यार, फेसबुक तो समझ ही नहीं आ रहा है। एंड वंस दैट फेसबुक कॉट अप विद एवरीवन, तो ऑर्कुट पे वो हो गया कि जो नॉन कूल लोग हैं वो ऑर्कुट पे हैं और कूल लोग सारे फेसबुक पे हैं। पर ऑर्कुट वो उस टाइम का कूल था यार, वो टेस्टिमोनियल्स या सब एक दूसरे के बारे में लिखते थे एंड कितना एंजॉय करते थे। लोग अरे यार मेरा एक टेस्टिमोनियल लिख दो यार।
एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे याद है जब आपको प्राइवेट मैसेजेस भी करने होते थे यू यूज्ड टेस्टिमोनियल्स कि यस टेस्टिमोनियल्स वर लाइक योर फैंसी कार, आपके पास कितने हैं, है ना? शो ऑफ करते थे शो हम वो ऑफ टेस्टिमोनियल्स, हाँ, वो आपकी संपत्ति थी कि देखो मेरे पास इतने हैं। गॉड अनदर लाइफ टाइम। मुझे पहले तो वेट करते थे कि वो इंटरनेट उस टाइम कनेक्ट हो जाए, चल इंटरनेट जाए। कनेक्ट कैसे होगा? ऐसे बैठते थे कि नहीं कनेक्ट हो जाए। डायल अप कनेक्शंस। डायलॉग। और मुझे याद है कार्ड्स आते थे 25 MB के कार्ड, और 25 MB इंटरनेट आधा पौना घंटा चल जाता था। अब तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो वी हैव सीन साइबर कैफे में जाके 30 रुपए घंटा और आधा घंटा पे हम लोग ने इंटरनेट यूज किया हुआ है। रिप्लाई करके बस आ किस जाना। जन्म की बात है वो? सो another lifetime. हाँ, मैरिज आफ्टर मैरिज में क्या चेंज है आफ्टर सोशल Before मीडिया? social media, Mohit, you will agree there were uninterrupted conversations. हम like we used to complete conversations. अब तो बातें आधे में रह जाती हैं, फिर कोई रील मुझे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है पेरेंट्स बिफोर एंड आफ्टर सोशल मीडिया, क्योंकि जो माँ बाप पूरा जीवन आपको सुनाते आए हैं कि फोन में घुसे रहते हो, लैपटॉप में घुसे रहते हो, अब वो फोन में घुसे रहते हैं। But not just parents, grandparents also. I think कोई भी नहीं बचा है। कोई नहीं बचा है। कोई भी नहीं बचा है इससे। And सब लोग मिल के मार्क जकरबर्ग का घर चलाने में लगे हैं। which I think जल्दी वो टाइम आएगा when everybody would like to detox. सबको detox करना है। अभी तो It's आप just that देखो ना, कुछ वो हो नहीं स्टडीज भी आ रही हैं कि जेन जी इज not posting much on social media. But again, that is a trend. They're just being cool by not posting. But scroll तो कर ही रहे हैं ना. तो it matters when you're off social media, any kind of social media, and कोई ऐसी ऐप आएगी जो आपको ऑफ कर देगी? yeah. आपको ही ऑफ कर देगी। हाँ, anything but not screen. मुझे लगता है कुछ ऐसा आए that will be the real अब I detox. think वो ट्रेन निकल चुकी है। Why? I really want that time वो back. ट्रेन अब गई, वो अब ट्रेन वापस नहीं आएगी। खैर, तो प्री सोशल मीडिया वाज द Yeah. टाइम जब आई थिंक हम ट्रैवल करते थे तो सिर्फ हमें ही पता रहता था, हम लड़ते थे तो सिर्फ हमें ही पता रहता था। नाउ आई थिंक एवरीबडी, आप लड़ते हो तो एक कोट पोस्ट कर देते हो, आप ट्रैवल ये कौन करते कर हो, रहा है? people are doing it. People Not are me. No, doing- not me. And when you're traveling, you're posting pictures, vacation pictures, date night pictures. उसके बिना तो एनिवर्सरी, सरप्राइजेस, हर चीज। I think- बिकॉज पता है, मुझे लगता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी इन जनरल, कि किसी के पास वॉइस नहीं थी, है ना? वॉइस होती थी विद ओनली द रिच एंड पावरफुल, एंड सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज्ड एवरीथिंग टू एन एक्सटेंट कि अचानक से नाउ एवरीबडी हैज अ वॉइस, एवरीबडी कैन स्पीक आउट देयर माइंड, एंड ना उसके पैसे लग रहे हैं, ना आपको किसी पोजीशन पे जाना है, कोई आपकी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं हो रही। सो सबको ये रिस्पेक्ट पाने का और अपनी आवाज सुनाने का एक जरिया मिल गया है, जो ह्यूमैनिटी में कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। अपनी एक बुक प्रिंट कराना इतना कम्बरसम टास्क होता है, और पहले तो और भी ज्यादा था कि क्रेडिबल हो तभी आपकी बुक छपेगी, आप इतना एक्सपीरियंस्ड हो तभी। अभी तो बुक छापना भी बहुत इजी हो गया, बट अब बुक की जरूरत ही नहीं है। यू कैन जस्ट स्टार्ट रोलिंग एंड यूट्यूब पे बोलो, एंड कोई ना कोई सुनने वाला है उसमें। Which is a good thing, I think. Which is a good thing in some aspects, and which is really worrying in others, because अब कोई कुछ भी कह सकता है, and now with AI, कुछ actually, what is your feed like? कुछ भी से याद आया, what is my your feed is Instagram and YouTube feed like? बदलती रहती है। जैसे मेरे फेजेस आते हैं, कभी मैं किसी वीक मुझे लगता है यार मेरे बचपन का सपना है, आई वांट टू हैव अ गुड डॉग, तो फिर मेरे फीड में जर्मन Dogs. शेफर्ड्स और अलग अलग डॉग ब्रीड्स, बेल्जियन मैलेनोआ, जो हम हैंडल तो seen कर ही that. नहीं सकते, ये सब आने लगेंगे। फिर देन देयर आर फेजेस जब मुझे लगता है यार एक अच्छी गाड़ी आदमी को ले लेनी चाहिए, तो मेरी फीड पे सिर्फ कार्स भर जाएंगी। फिर आएगा गार्डनिंग का कुछ आ जाएगा, फिर विलाज आ जाएंगे, फिर तुम्हारे कॉमेडी feed में रील्स वो आ जाएंगी। बिना सर पैर वाले वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो जो आते ही उड़ते हैं। हुए और नहीं, वो तो है ही, वो बाय डिफॉल्ट है। why? But I don't want to see that. कौन से उड़ते हुए वीडियोस? अरे मेरी I'll share तुम। अच्छा, तो बट या कपल रील्स, कॉमेडी रील्स, ये सब तो आते ही रहते हैं। एंड आई थिंक अब हम जब सोचते बाद में हैं, और इंस्टाग्राम को पहले पता होता है, है, हाँ। उसी बारे में रील्स आने लग जाएंगी आपको।
पहले मुझे लगता था कि नहीं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा तो फोन ने वो रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज ऑल एप्स टेक योर परमिशन टू रिकॉर्ड यू. बट अब मैं अगर कई बार से नोटिस कर रहा हूँ You think about it हाँ, and it's क्योंकि बिकॉज दे नो कि अच्छा आपकी लाइफ में ये हो रहा है. आपका देखो लोकेशन उनके पास है, टाइम ऑफ द डे दे नो, वेदर दे नो, है ना, प्लस आपकी कॉन्वर्सेशंस तो वो सुन ही रहे हैं. सो इट्स सो इजी फॉर एन ऐप जो इतना इतना लाइक इंसेनली डिटेल्ड में डिजाइंड है कि आपकी बात सुन रही है. अच्छा आपने उस दिन ये करना है, इस दिन यहाँ जाना है, आपको नहीं याद होगा बट एल्गोरिथम तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ना. They know everything about you. But what is that something that makes you feel jealous, or if not jealous, but एक self doubt जिसे देख के आता है ना, like I want that life, या I want this, या I think this is human, सबके साथ होता है. तो what is that one thing, those kind of videos या pictures किसके you really think like could be mine or could be done? अब तो मुझे नहीं होता बहुत honestly. मतलब मुझे I have never been jealous of anyone's like ऐसे material possessions. बहुत बचपन में कोई टॉयज वॉयज देख के होता हो तो ऑब्वियसली होता होगा, बट मतलब मेरा ये थॉट है कि अगर इफ आई वांट टू हैव अ फरारी, इट्स नॉट बिकॉज आई वांट टू शो ऑफ माय फरारी. मैं दुनिया का आखिरी आदमी भी होऊंगा तो भी मुझे फरारी चलाने का मन करेगा, Because you want that. बिकॉज आई वांट अ फरारी. और मुझे सबसे ज्यादा जो जेलिसी होती है वो लोगों के माइंड से होती है. सो अभी जो मुझे जेलिसी में नहीं कहूंगा, बट मुझे लगता है कि कुछ बसेस हैं जो आई हैव मिस्ड. तो मैं जैसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ता हूँ, सो आई रीड अ लॉट. तो जैसे मैंने रिसेंटली उनकी बुक पढ़ी, पंडित कन्हैयालाल मिश्रा की, आई टोल्ड यू. उस बुक ने मुझे डिप्रेस कर दिया. और क्यों डिप्रेस कर दिया? बिकॉज उनका ब्रिलियंस पढ़ के कि अ मैन इन वन लाइफ टाइम कुड बिकम दैट. और ऐसे ही नानी पालकी वाला का पढ़ा था, सैम वॉल्टन की पढ़ी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की. I mean, Benjamin Franklin जैसे I think everyone should read the autobiography of Benjamin Franklin. I've had it since I was 20 or something, और वो मैं 20 बार पढ़ चुका हूँ. It's so hard to emulate what these people have done, but to think that they have done it in one lifetime. पंडित कन्हैयालाल मिश्रा की वो था कि उन्होंने ICS का एग्जाम दिया, उन्होंने 150 on 150 इंग्लिश पेपर में मिला, and someone the Englishman commented, जो जिसने पेपर चेक किया था, बिकॉज तब पेपर चेक होने लंदन जाते थे, कि the English have conquered India, but only an Indian has conquered English. Somewhere in that line. He was that brilliant. He was that brilliant with language. English language. और same with उर्दू, हिंदी and English. तीनों भाषाओं पे ऐसी पकड़ एक जीवन काल में. उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर्स में से एक बनना. और मतलब कमाल थे लोग यार, ऐसे और अभी भी हैं ऐसे. तो मैं जब भी ऐसे किसी इंसान को देखता हूँ जो मुझे लगता है यार क्या ब्रिलियंट आदमी है, और ब्रिलियंट सिर्फ वो वाला ब्रिलियंस नहीं कि बस कोई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने वाला ब्रिलियंस, लाइक हाउ मच इम्पैक्ट दैट पर्सन हैड ऑन द वर्ल्ड, या कोई अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल में रख लेता है. सो आई फील जेलस ऑफ दोज पीपल. बीइंग अ पंजाबी, मुझे लगता है इमोशंस कंट्रोल करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है. सो बट मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ अपने जीवन में एक चीज अचीव करनी होगी तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर इमोशंस, जो कि शायद किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से ज्यादा टफ है. और हमारी सारी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक, गीता में भी यही है कि माइंड को कंट्रोल करो. सो वैसे आदमी कर ले तो फिर भगवान ही बन जाए, बट आज की जनरेशन जिस हद तक आप कर सको, आई थिंक कमाल हो जाए अगर आप कर सको. एंड मोस्टली दीज ग्रेट पीपल, अगर आप इनके बारे में पढ़ो ना, ज्यादातर, सब नहीं, तो उनका सबसे बड़ी एबिलिटी ही यही है कि टफ सिचुएशंस में, लाइफ के टफ मोमेंट्स में, दे वर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. एंड आई थिंक ऐसे ही लोग मेक अ वेरी सॉलिड इंटेंशनल लाइफ फॉर देमसेल्व्स. एंड बाकी सारे फिर वही है कि डियोर, शनेल और वेकेशन पिक्चर्स देख के जेलस फील कर रहे हैं. सो आई थिंक वो तो मुझे कभी भी नहीं होता. हाँ, सो अब आवर जनरेशन इज मोस्टली इनटू इट कि जब आप किसी के डेट नाइट पिक्चर्स या वेकेशन पिक्चर्स देखते हो, you really feel jealous कि अरे we are not traveling that much, our life is not enough.
कुछ especially मुझे the लोगों fact को कि our फ्रेंड्स life is को not देख के enough. होता है कि यार जिनके फ्रेंड्स एक ही टाउन में हैं या एक टाउन में बन गए हैं नए फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरे लिए हमेशा से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है नए दोस्त बहुत सारे बनाना new और 20 friends. लोगों के ग्रुप में बैठना। तो मेरे वही स्कूल के 2-4 जो थे वो सब बाहर हैं। सो जो अब एक आध हैं तो फिर उनसे भी यही होता है कि एवरीवन इज वर्किंग, तो उतना ज्यादा मिलना भी नहीं हो पाता। Mostly people, I think, अब लोगों को समझ आ गए हैं मैकेनिक्स ऑफ रील्स एंड इंस्टाग्राम कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड रील होती है, Yeah. लाइक दे अब टेक। लोग समझ गए हैं। अभी रिसेंटली इफ यू हैव सीन कि कोई प्रपोजल गॉट वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट नो यू हैव सीन, आई वोंट नेम, बट वो समझ आ रहा है कि दैट इज ऑल स्टेज्ड एंड वो एंगल्स जैसे लिए गए हैं तो वो समझ आ रहा है कि इसको प्रॉपर शूट किया गया है, बट द रिएक्शन इज लाइक ओ माय गॉड। एंड मतलब वो लोग ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि इट्स अ वेरी सरप्राइज प्रपोजल, बट इट इज नॉट। सो आई थिंक अब जनता भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई एंड दे नो व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज रियल। इंटेलिजेंट तो नहीं हुई है जनता, आई थिंक जनता वाइज हो गई है विद वाइज द नहीं, मैं यूसेज। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड। जनता सैचुरेट हो गई है, या ट्रू। मतलब अब देख हर के। चीज आपने 100 लोगों को करते देख लिया है। कुछ मुझे लगता है क्रिएटिविटी के लिए भी अब जगह बहुत कम ही बची है, बिकॉज कुछ भी आप सोच लो ना वो आपसे पहले 100 लोग करके बैठे हुए हैं। एंड देन एक बार ये देयर वाज दिस फेज जहाँ पे ब्रांड्स भी बहुत एकदम से एवरीबडी स्टार्टेड टू बाय ब्रांड्स बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स ने इतना उसको वाइल्ड एंड फेमस कर दिया कि एवरीबडी वांटेड टू हैव अ डियोर, प्राडा एंड शनेल। अब आई थिंक वो भी Subside हो गया है। सेटल्ड डाउन। सो आई थिंक विद यूसेज मुझे लग रहा है पीपल आर गेटिंग वाइजर। आई हैव गॉटन वाइजर, मुझे लगता है दीज काइंड ऑफ पोस्ट यूज्ड टू अफेक्ट मी, बट अब मुझे ऐसे जैसे प्रपोजल देखा तो आई नो ये एंगल्स जो हैं कि कैसे शूट हुआ होगा। आई हैव नेवर बीन इनटू ब्रांड बहुत You दिखाना। have never been. Mohit is. मेरे पास कोई In एक fact, सिंगल Mohit क्लोथिंग hates. भी नहीं होगी हाँ. जिसपे कोई बहुत बड़ा लोगो एकदम दिखता हाँ. होगा, नेवर। That is not classy also, baby. So कहीं एक सटल सा लोगो एंड ऑल ठीक लगता है। दैट टू आई थिंक अब इसके साथ रह करके मुझे वो भी हो गया है कि एक लोगो भी मुझे अब नहीं अच्छा लगता है। आई डोंट वांट। मुझे लगता है कि इफ यू आर वेयरिंग समवन्स लोगो दे शुड पे यू, व्हाई शुड आई They पे are टू taking कैरी समवन्स advantage. लोगो। True. पर अब बहुत सारी कंपनीज इसको भी केटर कर रही हैं, लोगो फ्री क्लोथिंग एंड लोगो फ्री शूज और ये सब चीजें, एंड दे आर चार्जिंग अ बॉम्ब फॉर दैट, फॉर नॉट पुटिंग अ लोगो। आई डोंट नो अबाउट दैट कि अगर आप लोगो मतलब आप ब्रांडेड भी पहन रहे हो, यू आर पेइंग बॉम्ब आल्सो फॉर इट एंड देन पीपल डोंट आल्सो कम टू नो कि तुमने डियोर पहना हुआ है। बट तो वो why? भी वही है ना कि एक लेवल का आदमी जिसको सब जानते हैं कि ये उस लेवल का आदमी है, हाँ, he can afford to हाँ, do that. हाँ. But people who are trying to fit in a group or show that I have arrived in life, Yeah, for उनको लगता है कि them, अगर मैं हाँ. दिखाऊंगा नहीं तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा I have arrived. But that is not classy according to me. मुझे जो लगता है like जैसे I feel smaller towns में 30-40% लोग अच्छी cars like German brands इसलिए लेते हैं कि they like the car. Most of the people who, because I am so passionate about cars, so I think most of the people who buy good cars is to show off that they have a good car, to fit in a group. But और 30-40 ऐसे होंगे परसेंट जो genuinely are into cars or they love cars or they the fun of driving, the love for driving, yeah, or for comfort in fact. अब तो but उसका रेशियो है। it's the same for us women. Yeah. Like हम I think लग्जरी बैग्स का जो ये फेज आया है अब, आई थिंक इट्स डाइंग ऑल्सो। अब ठीक है, आई हैव लोग कहेंगे है तो बोल रही है, बट देन आई थिंक तुम्हारे साथ रह करके मुझे समझ आ गया, एंड ऑन एनी गिवन डे आई प्रेफर अ ज़ारा एंड H&M बैग ओवर एनी लग्जरी ब्रांड बिकॉज Point to be noted, my lord. ओह शिट ये तो नहीं बोलना था इसको हम नहीं, we'll not cut it. We'll put it और इसकी हम 10 रील बनाएंगे बार नहीं, if somebody wants to gift तो मैं थोड़ी मना करूंगी, अब मैं ले लेती हूँ, but then हाँ, I'll not go and spend on a luxury bag. हाँ, the point is on any given day I'll scroll past ऐसे bags and luxury clothing pictures and videos, but when I see people like
doing good brand deals which I could have totally done. मुझे लगता है मेरा self doubt तब वहाँ से आता है, like this is something I can totally do, this is something I can do better, but why am I not getting that opportunity? मतलब एक good work जिसे कहते हैं, when I see missing that, मुझे Instagram disturbs me then. So I think especially people moving countries, building lives for themselves, which is like solid life, that's when मुझे लगता है self doubt creeps in. So that's it for I think our second podcast. Yeah. So थोड़ा सा पहले से थोड़ा ज़्यादा सीरियस था ये, ज़्यादा इसमें कॉन्क्रीट टॉपिक्स But I'm थे. sure people will be able to relate, especially जो small towns से हैं, who are raising kids in small towns and who are working in small towns. I think they will relate. And do comment and let us know what more you want to see on the podcast. Do like, share, subscribe, all the good things. Please, yes, comment. Tell us where we went wrong or what we can improve. What do you want us to talk about more? And yeah, please like, subscribe, share, and watch the full video every time you watch us. Press the bell icon. हम भूल जाते हैं. क्या क्या करना होता है यार, bell. But it's been a dream to say all of this. Yes. Please subscribe to our channel. Yeah. So we're finally living that dream. And do share, subscribe to our content. Yeah.